Ram Ram everyone. Welcome to Enthusiastic Spiritual Series. Let's welcome Shiv Kumar ji to give us a discourse on Bhagavad Gita based on Swami Ramanand teachings. Welcome Bhaiya and thank you all for joining us today. Shri Ram. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namah. Ram Ram to you all joining this session. We are at chapter number 6 of Srimad Bhagavad Gita, Atma Sanyam Yog, verse number 12. That is Slok Sankhya 12. Lord Krishna says, तत्रैकाग्रं मनम कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये. तत्र एकाग्रम मनम कृत्वा, that is by concentrating now तत्र एकाग्रम मनम कृत्वा, by concentrating mana कृत्वा, concentrating the mind. This is a kind of meditation, a kind of advice by Lord Krishna to those who are Aroh Margi, those who are ascenders of energy from Mooladhar to Sahasrara. So the last one, the lowest one is the Mooladhar chakra and the uppermost is Sahasrara. So those who want to achieve the accomplishment on their own, those who want to accomplish it by योग साधना only, जो भगवत कृपा पर नहीं बल्कि आत्म कृपा से भगवान को पाना चाहते हैं, जो आरोह मार्गी हैं, उनके लिए साधना कही गई है कि ऐसे लोग तत्र एकाग्रम मनम कृत्वा, ऐसे लोग मन को एकाग्र करके यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, यत चित्तेन्द्रिय, that means controlling the mind, yat chittendriya kriya and akriya, that means chit indriya kriya, all these things, chit that is man, indriya that is senses, kriya that means activity, controlling all these three, mind, senses and activity, they should sit, they should upavishya sthane, they should sit in a place for meditation. तत्र एकाग्रम मनम कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, जो योगी मन को, इंद्रियों को और सभी क्रियाओं को नियंत्रित करके और मन को एकाग्र करके, एकाग्र का मतलब है प्रभु में रमाकर, those who are focusing their mind on pastimes of God, on abodes of God, on different kind of activities of God, any image of God. So those are focusing their mind not on material objects, but जो भगवान की लीलाओं में, भगवान के चित्र में, विग्रह में अपने मन को स्थापित करके, उनके गुणों में अपने मन को स्थापित करके, इस प्रकार से उपविश्य आसने युञ्ज्यात्, जो बैठते हैं, जो आसन पर बैठते हैं, उपविश्य who sit in the seat, who sit asane, the seat, युञ्ज्यात् yogam atmashuddhaya, they are striving for the purification of soul. So, and that is atmashuddhaya, for the purification of soul they are sitting, they ultimately goes to our abode, वो मेरे ही स्थान को, मेरे ही लोक को जाते हैं, मुझे ही प्राप्त करते हैं. तो ये आरोह मार्गी की साधना है कि उन्हें सभी प्रकार से, जैसे पूर्णोंगानिव सर्वसा, जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को, like the turtle, like the tortoise keeps all of its body parts inside its
body. In the similar manner, what is the skeleton within that tortoise is keeping all its body part, so that tortoise is scared either of the material desires may flourish it. That's why जो जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को अपने शरीर के अंदर कर लेता है भय के वश में कि शायद बाहर से कोई कामना न जग जाए इस प्रकार के पदार्थ युक्त संसार में, वैसे ही आरोह मार्गी को ये सदा भय बना रहता है कि कहीं हमारा मन बाहर न भाग जाए, कहीं हमारी इंद्रियां प्रलोभित न हो जाए, शरीर की क्रियाएं न प्रभावित कर दें। तो वो सबको अपने आप में एकाग्र करके इस प्रकार से बैठता है। लेकिन ये एक प्राकृतिक अवस्था नहीं है, इसमें मन को अधिक देर तक नहीं रखा जा सकता है। एक प्राकृतिक अवस्था है भक्ति मार्ग की, जिसमें हम भगवान पर छोड़ देते हैं, भगवान की कृपा पर आधारित होते हैं। द कंपैशन, द वॉट एवर इज द ग्रेचुइटी ऑफ गॉड, on that basis if we are doing meditation, that is permanent and more secure. This is also a path followed by whatever is the 6th chapter, Atma Sanyam Yoga. So in this the controlling is more important. Otherwise, if a person who is on basis of self want to acquire God, if any of its whatever practices is not done completely, not done properly, whatever efforts are here to control it, if it is any of is going out of control, then the complete meditation goes in vain. ऐसी स्थिति में अगर हम इनमें से किसी भी अंग को बाहर जाने देते हैं आरोह मार्ग की अवस्था में, तो सारी साधना विफल हो जाती है। जैसे बहुत बड़े सिद्ध विश्वामित्र को मेनका ने प्रभावित कर लिया था और फिर ऐसे में वो अपनी साधना खो बैठे थे। तो आरोह मार्ग के साधन में सदैव ये भय बना रहता है कि हम अपने मार्ग से, अपने पथ से कब हट जाएं। उसमें स्वयं का प्रयास अधिक होता है। जब हम खुद झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू के निशान शेष रह जाते हैं। As when we clean the floor, at that time the traces of cleaning with broom sticks are remaining. While if God cleans it, then the no trace remains. When we clean our body, when we purify ourselves, then the ego that I have cleaned myself, it remains, which is more dangerous. However, this path is followed by certain meditators. Literal meaning of this is sitting on that seat, he should concentrate his mind for the purification of internal organs, making the mind one-pointed and keeping the actions of mind and senses under control. So by keeping all this meditation, that person starts meditation. By controlling the mind, senses and organs, sitting in isolate place, that person starts meditation. 6.13, next verse. समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वदिशश्चानवलोकयन्. समं काय शिरोग्रीवं, समं, keeping equanimous, the kaya, the body, shiro, head, and grivam, that is thorax. So keeping body, neck and head in a straight line. Dharayan achalam sthita, and keeping static the body, do not wobble, do not vibrate while doing meditation. Such is the condition for Aroha Margi, those who are ascenders of energy. Sampreksha nasikagram swa, and keeping the both eyes at the tip of nose, focusing both the eyes at tip of nose so that it do not get dislocated to the worldly objects. That person meditates. ऐसा व्यक्ति जो आरोह मार्गी है, आरोह मार्गी एक ध्यान मार्गी साधना है जिसमें स्वयं की सभी इंद्रियों को वश में कर ध्यान किया जाता है। जबकि हम अवरोह मार्गी हैं, जो स्वामी जी की साधना है वो अवरोह मार्गी है, वो भक्ति मार्गी है।
इसमें ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ किया जाता है और राम नाम का जप किया जाता है, बाकी ईश्वर पर छोड़ दिया जाता है। However, all types of meditations, all types of yogas are discussed in Gita. So, while adopting our own path, हमें अपने मार्ग को पर चलते हुए दूसरे मार्गों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए कि दूसरे क्या क्या करते हैं, और अपनी जो साधना है उसका सम्मिश्रण नहीं करना चाहिए, लेकिन जानना चाहिए कि दूसरों की क्या साधना है, तभी हम उनसे बच भी पाएंगे और अपनी साधना को भी हम विभेद कर पाएंगे कि हमारी और दूसरों की साधना में अंतर क्या है, और अपनी ही साधना में फिर हम चल पाएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग साधना को अलग अलग पाठों में, अलग अलग चैप्टर्स में भगवान ने पूरी तरीके से बताया है कि कैसे कैसे। इससे साधकों को इस बात में अंतर करने में पता चलता है कि कौन से साधक किस प्रकार के मार्ग पे चलते हैं और हमारी क्या साधना है। हर एक साधक को थोड़ा थोड़ा दूसरी साधना के बारे में भी जानना चाहिए। ऐसा करने से हम साधना सम्मिश्रण से बच सकते। समम काय शिरोग्रीवम धारयन् अचल स्थिरा, so keeping the body, neck and head straight without vibrating, keeping the body static. Samprekshanasikagram, and keeping the focus of both the eye on tip of nose and without looking to the worldly objects, that person sits on seat for meditation. Next verse is 6.14. प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परा. Prashantatma, that is keeping the mind serene, pure, pristine. Prashantatma, without any kind of disturbance, keeping the mind pure. Vigat bhi, without fearing. Brahmachari vrate sthita, also keeping the vow of celibacy. ब्रह्मचर्य का व्रत करता है, शांत मन से, भय रहित होकर, मनः संयम्य मत चित्तो, कीपिंग द कंट्रोल ऑफ माइंड, एंड मत चित्तो, कीपिंग द माइंड फोकस्ड ऑन मी. ऐसा करते हुए आंखों को नाक पर फोकस करे, मन को मुझ पर फोकस करे. ऐसा करते हुए युक्त आसीत मत परा, वो मेरे परायण हो जाता है. दैट इज मत परा, दैट ultimately gets the supreme goal. Now, what is the literal meaning of this? He should remain seated with a placid mind, free from fear, firm in the vow of celibacy, and with the mind fixed to me and controlling it through concentration, having me at the supreme goal. At the supreme goal, वह मुझे ही प्राप्त करता है. However, it is too difficult. Like at the tip of finger, a complete globe, if it is made static or kept, then there is a chance that the globe may fall any time from it. Because at the tip, Aroh mark, that is ascending is always difficult, because always there is a fear of falling, and descending is always simple. उतरना हमेशा आसान होता है, जबकि चढ़ने में गिरने का डर बना रहता है. तो उसमें ये भी करना है, ऐसे मन को करना है, ऐसे इंद्रियों को करना है. हाउ द माइंड शुड बी देयर, वी शुड बी फियरलेस. बट हाउ कैन एनी बी फियरलेस इफ सच थिंग्स आर, दीज आर द प्री कंडीशंस. इतनी सारी परिस्थितियों में कोई जो सिद्ध पुरुष है या कई सालों की तपस्या के उपरांत वो ऐसा कर पाता है. तो इतना आसान नहीं है. एक गृहस्थ के प्राणी में ऐसा तो करना आसान भी नहीं है. जो कंडीशंस दिखाई गई हैं कि हमें कहाँ रहना चाहिए, कैसा आसन करना चाहिए, किस प्रकार का आसन हो और किस प्रकार से हमें ध्यान करना है, वो संभव नहीं है. देयर इज ऑलवेज ए फियर of something. The bodily disturbance is also there. If we are doing wrong, if we are doing alone on our own without the guidance of anybody, then also there may be the mental or bodily disturbance may occur. इस प्रकार की ध्यान साधना में किसी भी प्रकार की शारीरिक विक्षिप्त होने की भी संभावना बनी रहती है, पतन की समस्या बनी रहती है. और इस प्रकार से ये सबके लिए नहीं है. जो गुरु के इस प्रकार के जो गुरु होते हैं,
जो ध्यान मार्गी गुरु होते हैं उनकी उपस्थिति में इस प्रकार की साधना संभव हो पाती है, अकेले में तो नहीं हो पाती। नाउ 6.15 युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत् संस्थामधिगच्छति। युञ्जन् एवं keeping the mind yunjan, absorbed in me, sada atmanam yogi, niyat manasa sada atmanam, that is constantly the mind. A yogi constantly keeping the mind niyat manasa, that means discipline. Manasa means mind is disciplined. That his or her mind, that yogi's mind is always disciplined. Yunjannev, and Yunjannev, that person is also has the single aim that to ultimately submit to God. उसका भी वही उद्देश्य रहता है कि भगवान में खुद को मिला देना है, लेकिन हम वो अपने शरीर की शुद्धि करता हुआ, स्वयं से शुद्धि करता हुआ भगवान में मिलाने की बात करता है। प्रयास सभी का है, सब अपने अपने तरीके से भगवान को पाना चाहते हैं। वो भी प्रयास कर रहा है, वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। बच्चा अपनी तरफ से प्रयास करे कि हम माँ को पालें, ऐसा प्रयास। युंजनेव, मुझ में ही युक्त रहते हुए, कीपिंग और फोकसिंग द माइंड ऑन मी, एब्सॉर्ब्ड इन मी, दैट इज एंड कॉन्स्टेंटली कीपिंग द माइंड कॉन्स्टेंट एंड एब्सॉर्ब्ड इन मी। शांतिम निर्वाण परमाम, that person also shantim nirvan, liberated from this worldly bondage, material world. Shantim ultimately gets the peace. Mat sanस्थाम अधिगच्छति, only goes to my abode. ऐसा व्यक्ति जो मुझसे जुड़ा रहता है, मन को नियंत्रित करते हुए, स्थिर रखते हुए, शांतिम निर्वाण परमाम, अंत में वो निर्वाण, परम निर्वाण की अवस्था, इस संसार से मुक्ति को पा जाता है, शांति को पा जाता है। मम संस्थानम अधिगच्छति, और मेरे ही काल को, धाम को प्राप्त करता है। Thus the concentrating mind, forever the yogi of controlled mind achieves the peace which culminates in liberation and which abides in me, मुझ में ही निवास करता है। Now, there are varieties of techniques used in different kinds of religions also, like Jain techniques, Buddhist techniques, Tantric techniques, Taoist techniques. There are Vedic techniques. There are the many techniques of meditation adopted by many of the devotees. Sri Krishna makes this riddle easy to solve. Which should one practice and which one should not practice? This is a kind of riddle. There are many techniques. A person who wants to achieve God or submit to God, who wants to live within God, which kind of technique that person should use? This is the question. The aim of meditation is not merely to enhance concentration and focus, but it is also to purify mind. This is our aim. It is not only to focus at something, but it is for the purification of mind, that how our mind becomes stable. That is the ultimate aim. Now the God is beyond all three modes. That is, there are three different modes: Satogun, Tamogun, Rajogun. That is goodness, passion, and ignorance. These are the three kinds of mode of virtues, and God is free from all three modes of virtues. So the meditating upon the pranas may be called transcendental by the practitioner, but true transcendental meditation is upon God alone. So by meditation, we may be the transcendental, we may ultimately transmit or free from three modes. However, God himself is transcendental. त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, ये जो धरती है ये त्रिगुणमयी है, इसलिए तू तीनों गुणों से रहित हो जा और मैं त्रिगुणमयी रहित हूँ। I am free from the three modes. So if we focus our mind into God, we already become free from three virtues. Now,
There are three different things. One is yog, other is bhog, and the third one is rog. So one is yog. If we are focusing our mind to God, that is yog. If we are if we are inclined toward the material objects, that is bhog. However, bhog is not allowed. Due to our extra liberty, we may fall prey of this भोग. हमको बहुत अधिक शक्तियां और अधिकार भगवान ने दिए हैं, तो कई बार हम अपने मन के लालच में और इंद्रियों के लालच में इन भोगों पर पड़ जाते हैं. लेकिन भोग किसी भी इंद्रिय का अपनी स्वतंत्रताओं का उल्लंघन कर देना है, अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर देना है, एंड दैट लीड्स टू रोग. When we are having bhog, we are enjoying with our senses. By taking the help of our senses, we get enjoyment. It leads the cross of limit, and ultimately we fall prey of diseases. So there is always a limitation. How should we manipulate our senses, our mind, our intellect in such a manner? Because it is the body. We have to take care of body also. Body is the carrier of our soul. So we have to take care of our body also in due respect. It is not for any bhog, but we have to take care. We should not be extremists. That one time Gautam Buddha, in initial stage of meditation, has done fasting for many days. But due to that fasting, their concentration of meditation has gone weak. एक बार भगवान बुद्ध ने बहुत दिनों तक ऐसी साधना की जिसमें उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया, लेकिन ऐसा करने से फिर उनका ध्यान में मन नहीं लगता था. वहीं से कुछ गांव की औरतें उस जंगल से जा रही थी और उन्होंने ये गीत गाया कि डू नॉट टाइटन द स्ट्रिंग ऑफ वीणा सो मच that it may break the string. वीणा के तारों को इतना मत खींचो कि टूट जाएं. At that time, Gautam Buddha realized that it is a wrong practice. कर्षयंता शरीर स्तंभ, जो शरीर में स्थित शरीर को कष्ट देता है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं वो मुझे ही कष्ट देता है. तो अतिरेक नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का. तो गौतम बुद्ध ने फिर वो अवस्था छोड़ी, उस व्रत को छोड़ा, और फिर जो अल्पाहार है उसको करते हुए अंत में उन्होंने अपने उद्देश्य को प्राप्त किया. तो शरीर को किसी अंतिम या अति अवस्था में नहीं ले जाना चाहिए. अगर हम योग कर रहे हैं तो दिन दिन योग कर रहे हैं, रात रात योग कर रहे हैं. लाइक ये शरीर वाहक है हमारी आत्मा का, तो शरीर का ध्यान रखना भी हमारा दायित्व है. इट इज आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ बॉडी, नॉट टू क्रॉस इट्स लिमिट बट टू टेक केयर ऑफ बॉडी. शरीर आत्मा का वाहक है, तो योग भी करना है और शरीर का ध्यान भी रखना है. नाउ so it is how we have to make balance of all these. The next verse is 6.16. नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम नश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनः नाति अश्नति तु न अति अश्नतः तु. Those the person who is not eating much. If we are eating much, we may fall asleep. So eating up to limit, a little lesser than our appetite. जितनी हमारी भूख हो उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए. अधिक खाने में साधना में बाधा पड़ती है. न च एकांतम अनश्नता, and nor isolatedly sit starving. हमको भूखे भी नहीं रहना है, फास्टिंग भी नहीं करना है कि पूरा पूरा दिन हमें इसी पर ध्यान जा रहा है कि कब चांद निकले, अब कब भोजन मिले. हमारा ध्यान भगवान पर होना चाहिए, भगवान की लीलाओं पर होना चाहिए. व्रत पर ध्यान नहीं होना चाहिए. व्रत अपने आप हो सके, जो अपने आप होता है शरीर के लिए जो हितकर है वही उतना ही, वही व्रत ही है. हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है. शरीर को जिस चीज में आराम मिलता है आराम से
होना चाहिए, ना मुझे हमें अधिक खाना चाहिए, ना ही शरीर को भूखा रखना चाहिए। ना चा अति स्वप्नशील से, द पर्सन हु इज स्लीपिंग डे एंड नाइट इज ऑल्सो नॉट गुड। अधिक स्वप्नशील नहीं है, जो 6 घंटे की निद्रा है रोज की वो हमें लेनी चाहिए। 6 hours स्लीप इज सफिशियंट फॉर ए मेडिटेटर। न जागृतो नैव चार्जुना, इट इज, जो अधिक 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 सोता है वह भी उचित नहीं है, जो पूरा दिन और रात जागता रहता है। In this case also, we cross the limit of our body. Our body, if it gets damaged, then we cannot do our meditation properly. यदि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, योग के द्वारा, योग शरीर को मजबूत करने के लिए, योग से शरीर को स्वास्थ्य ही मिलता है। यदि योग से शरीर को हानि हो रही है तो हम ठीक से योग नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से शरीर का ध्यान रखते हुए शरीर स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है और फिर ध्यान में भी मन लगता है। वी कैन कंसंट्रेट ऑन अवर चैंटिंग्स ऑफ नाम जप इफ अवर बॉडी इज हेल्दी। सो वी शुड नॉट गो टू एक्सट्रीम्स। द मिडिल मार्ग, द इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था ही उचित मार्ग है। We should be equanimous, we should be equipoised, we should not go to either of its extremes. The literal meaning is, O Arjuna, yoga is not for one who eats too much, not for one who does not eat at all, neither for one who habitually sleeps too long, and nor for surely who keeps him awake. इन सभी चीजों से हमें बचना चाहिए। So often beginners on the path with their complete wisdom state you are the soul and not this body. So simply engage in spiritual activity. Initially in Sankhya Yogi, many persons says, do not care of body. Simply focus on soul because you are not body. But it is not the correct statement if given by those. A philosophy, however, such a philosophy cannot get too far. It is true that we are not the body, yet the body is our carrier as long as we live, and we are obliged to take care of it. हमारा कर्तव्य बनता है, ये शरीर हमारी आत्मा का वाहक है। हमारा कर्तव्य बनता है जब तक ये हमारी आत्मा का वहन कर रहा है, इसका भरण पोषण और देखभाल करें। We have to take care of this body. Now, those who cultivate only material science, there are two types of sciences. One is material science and other is spiritual science. Material science or physical science, it is for how the body can be kept fit. It is the physical science or material science. How, what we should do for keeping fit our body. Spiritual science is how can we keep our soul purified. So these are the two different aspects. Material science is necessary for maintenance of body, while spiritual science is necessary for manifestation of internal divinity and power of us. We must balance in both lives to reach the goal of life. That's why tap, yap, niyam, sanyam, ahar, vihar, there are the 8 types of sadhans, practices given in Vedas. All we are following to make our body healthy and soul purified. Hence, yoga, asana, pranayam, and the science of proper diet, these are the necessary part of Vedic knowledge. So, we should adhere it. Verse number 6.17. Yukta ahara viharasya yukta cheshtasya karmasu युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, युक्त आहार विहारस्य, we should have the proper eating, neither too less nor too much. Yukta ahar, we should have proper eating, and viharasya, the proper movement of body, not exaggerated movement. We are dancing and dancing, it is not, and not keeping alone, simply sitting, that is also not. Viharasya, the movement of body should be there. Yukta ahara viharasya, yukta cheshtasya karmasu, and yukta cheshtasya karmasu. Balance in work, we should also balance in work.
हमारे कामों में भी संतुलन होना चाहिए। खोल दो ये खिड़कियां, उठा दो सब पर्दे, नई हवा को जरा बंद घर में आने दो। खोल दो ये खिड़कियां, उठा दो सब पर्दे, नई हवा को जरा बंद घर में आने दो। जो पुराने रीति रिवाज है उस पर हमें बहुत नहीं चलना है। जो चीजें हमारी साधना में उपयुक्त है उसे हमें अपना लेना चाहिए। गीत को बजने दो और साज को छिड़ जाने दो। कभी कभी गीत छिड़ता है और साज बजते हैं, उल्टा भी हो रहा है तो होने देना चाहिए। गीत को बजने दो और साज को छिड़ जाने दो। पिंजरे के तोतों को दोहराने दो झूठी बातें, रटी रटाई बात पे नहीं चलना है। पिंजरे के तोतों को दोहराने दो झूठी बातें, अपनी मैना को तो पर खोल चहचहाने दो। अपनी मैना, जो हमारी अपनी ऊंची उड़ान है, उसमें हमें उड़ना चाहिए, रीति रिवाजों पर हमें ज्यादा नहीं चलना है। कभी थमने दो मीरा की थिरकती पायल, कभी गौतम के सधे पांव बहक जाने दो। ऐसा भी ना हो कि हम डांस ही कर रहे हैं, नृत्य ही कर रहे हैं, ऐसा भी ना हो ध्यान ही कर रहे हैं। मीरा भी कभी बैठ जाए ध्यान में और गौतम भी कभी नाचने लगे। कभी थमने दो मीरा की थिरकती पायल, कभी गौतम के सधे पांव बहक जाने दो। कभी उठने दो मंदिर से भी अजान की आवाज, और कभी मस्जिद में घंटियों को घनघनाने दो। कहने का मतलब है बहुत ज्यादा रीति रिवाज में नहीं चलना। साधना का तो एक अपना अनूठा पथ होता है, योगी एक अनूठा व्यक्ति है, उसको रिवाजों में नहीं नापा जा सकता। कभी धरती को भी उठने दो अपने बाहों पर, कभी धरती को भी उठने दो अपने पांवों पर, और आसमान की बाहों को भी झुक जाने दो। कभी धरती भी उठ जाए और आसमान भी झुक जाए। गीत को बजने दो और साज को छिड़ जाने दो। उसको खोने दो जो कभी पास तेरे था ही नहीं। ऐसी चीज हम पकड़ के रखे हैं, ये मेरा है, ये मेरा, ये चीजें हमारी नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, उसकी ओर अपनी दृष्ट हो तत्व नहीं हो तत्वदर्शी। तो जो चीज असत है अगर वो खो रही है तो खो जाए। उसको खोने दो जो कभी पास तेरे था ही नहीं, जिसको खोया ही नहीं उसको फिर से पाने दो। गीत को बजने दो और साज को छिड़ जाने दो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्ताहार विहारस्य। अब वी शुड हैव बैलेंस्ड डाइट, वी शुड हैव बैलेंस्ड मूवमेंट। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, वी शुड हैव रेगुलेटेड चेष्टा, that is युक्त चेष्टस्य, balance in work. युक्त स्वप्न अवबोधस्य, we have balance in sleep and wakefulness. हमें संतुलन रखना चाहिए जागने में, सोने में, खाने में, चलने फिरने में और अपनी चेष्टाओं में। योगो भवति दुख, और ऐसा योगी, इट इज द स्लेयर ऑफ सॉरोज, वो सभी दुखों का विनाश कर देता है जो चीजों में संतुलन रखता, अतिरेक नहीं करता, अति नहीं करता, वो सब चीजों में संतुलन रखता है और दुख को वो सदा के लिए नष्ट कर देता है। Now, Mausi, who is now singing today? Bhajan, chanting bhajan. Bhaiya, let me unmute her. Till now, nobody has said that they are going to sing. Let me. I think Geeta ji will chant a bhajan today. Geeta ji, okay. I'm unmuting Geeta ji. Okay. करना है आगे नहीं कुछ। Geeta aunty, are you able to unmute? आप भजन गाइए गीता जी। आप आवाज नहीं आ रही गीता जी। हाँ हाँ ठीक ठीक है भैया जी। हमने हाँ। सोचा और कोई गा रहा है तो ये श्री राम। दिया जी What, Bhaiya? फुल स्क्रीन गीता जी। I think she has to do full screen, Bhaiya. ओके ओके।
श्री राम। तेरे चरणों में हम अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाएंगे। जब तक है सांसें इस तन में हम तेरा ही गुण गाएंगे। तेरे चरणों में हम अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाएंगे। तूने तो हमको बहुत दिया, भर दी झोली मेरी खाली। जीवन की बगिया महका दी रखवाली की, बन के माली रखी ना तूने कोई कमी, रखी ना तूने कोई कमी। हर सुख को हमने पाया है। जब तक है सांसें इस तन में हम तेरा ही गुण गाएंगे। भगवान और भक्ति की दुनिया में रिश्ता तो बड़ा ही न्यारा है। जो शरण तुम्हारी आता है प्रभु जी, वो तुमको प्यारा है। भंडार तेरा है बहुत बड़ा, हमको भी कुछ दे दो प्रभु तुम। फिर और ना कुछ मैं मांगूंगा, हमें अपनी शरण में ले लो तुम। जब तक है सांसें इस तन में हम तेरा ही गुण गाएंगे। तेरे ही भरोसे जीते हैं लेते बस नाम तुम्हारा है। चरणों की सेवा सौंपी है, ये भी उपकार तुम्हारा है। इच्छा है हमारी एक यही, फिर दरस तुम्हारा पाएंगे। फिर हाथ फिरा दोगे हम भव सागर तर जाएंगे। जब तक है सांसें इस तन में हम तेरा ही गुण गाएंगे। तेरे चरणों में हम अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाएंगे। जब तक है सांसें इस तन में हम तेरा ही गुण गाएंगे। श्री राम। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तोहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। स्वदिष्टं भवतु गोविन्द, स्वदिष्टं भवतु गोविन्द, नतमदिष्टं पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो माँ, हम सब तेरी शरण में, अपने चरणों की भक्ति दो माँ। श्री राम। राम राम भैया जी, राम राम। राम राम मौसी जी, चरण स्पर्श। राम राम सुमन। राम 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 मौसी राम। चरण स्पर्श दीजिए। राम राम और प्रवचन में भी प्रिया बहन राम राम। राम राम आंटी। राम राम विजय बहन जी। राम राम कुसुम। राम राम दीदी जी को, सब बहनों को राम राम। राम 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 सुमन राम। गीता बहन, प्रिया बहन, सबको राम राम राम। राम राम राम। राम राम दीदी। कुमार बेटा बहुत अच्छा बोल रहे हो।
ये के अंदर जाने लगे, थोड़ा थोड़ा अंदर, बाहर बाहर उतरता है, अंदर नहीं जाता है। दीदी राम राम, चरण स्पर्श दीदी, प्यारी प्यारी दीदी, तो बहुत राम बहुत राम। प्यार। अब हरिद्वार में मिलेंगी दीदी हमको। हाँ? अब दीदी हरिद्वार में दर्शन देंगी। 16 तारीख को हाँ। पहुंचोगी। Thank you, Bhaiya, for the wonderful discourse. And thank you, Geeta ji, for the beautiful bhajan. Thank you, everyone, for joining. Ram Ram sabko. राम राम। इसको कैसे खोला जाता है?